First, my apologies that I'll have to rush a little because I have a program going on for a month, which is called the Gurugram Police Cyber Security Summer Internship, where we have interns all across the India who we train at the Gurugram Police. But as I have already committed to Arushi ji and Raj sir that I'll be there, so I'll take some of your time. And I can see you have already a very esteemed panel who will be talking to you about the subject. So, as you heard in my profile, dear students, I work in the domain of cybersecurity, cybercrime investigation, and I have a major engagement with the law enforcement agencies pan India. And I've also been appointed in CID Haryana Police. I've been doing very extensive work in mentoring and guiding young students into this domain. So that has been my active role through various kind of internships which I run with the law enforcement agencies. And I've been fortunate to be a part of investigation with various cases. So that is my experience and encyclopedia of knowledge. I come here with an experience of 30 years and I'm already working with more than 17 state police. Currently, the scenario we are seeing of this cyber crime explosion is a little scary because every day we are on an average receiving 50,000 calls per day. This is the data which we got from I4C, that is the Indian Cybercrime Coordination Center, and the helpline number which is so popularly called 1930. So the website which is called cybercrime.gov.in. So there were some statistics which I can share with you, which is on my screen, which says that 2022 to 2023, we received 21 lakh cases on our portal. So that was approximately 1,95,400 filed complaints alone were filed from Maharashtra. And this was from 2022 to 2023. And the another scary thing was that the money lost in these cyber frauds and financial frauds was approximately 10,300 crores, which was lost in the cyber frauds. So these are the statistics which are coming in. Just a day before, I was sitting at one of the cybercrime police station with the SP sir, and just in front of me, I received a complaint of a very popular crime, ongoing crime going on these days called digital arrest, where the person got a call saying that there was some courier from FedEx which has some bomb or some illegal material, and they also spoke about the Aadhaar number of the victim. They had all the information, and then they said we are doing a Skype call. The Skype call went in for 4 days without disconnection, and a serious, you can say, mental trauma was given to the victim, and the victim lost 1.30 CR. And it was a fake crime, but it was a fraud, it was a scam. But this poor victim, who was a senior citizen, he got so scared. Acha, these hackers, they are so smart. They show you letters, they show you high court orders, everything they have designed with the help of technology. They have fake signatures, they have fake documents, and the worst thing is they have your data. So today what I am seeing in crime is data is being weaponized, and people are not realizing that how we are losing our data on a minute to minute basis, whether you use social media apps, whether you install loan apps, whether you install a APK file on your phone, or whether you click on a link which is loaded with something called malware. So my dear students, today all this is making it very important to understand cyber hygiene. And just to give you an opening statement to understand the domain and dimension of this crime, so Bangalore is supposed to be the IT hub in India, and an IT company CEO got scammed for 2.3 CR. And this IT company CEO again got an automated call from somebody claiming to be from FedEx Courier, and then they claim to themselves to be from CBI and ED, and this person lost 2.3 crores. Another very popular educational institution called BITS Pilani, their professor was duped of 7.67 crores. Again, she got an automated call from TRAI, TRAI,
and the call said that your numbers are being misused in a crime, so the police wants to connect with you. And again, a ED officer connected, and they said, we want to check your bank statement. So they took access of their bank accounts, and all the savings, loans, everything was done digitally in a span of 2-3 days, and the victim lost. So what we are seeing, and today early morning we got a case where somebody created a deep fake of Mukesh Ambani, a very popular businessman, and cheated somebody with a 7 lakh rupees scam. So this is a doctor. He's a doctor who lost 7 lakh rupees in a share trading scam. And he was misled by a deep fake video of Mr. Mukesh Ambani. So now what I'm seeing, AI is used in crime now. So AI, you have heard of Chat GPT. The hackers are using Hack GPT. So hackers are creating sophisticated viruses, sophisticated videos and audios, which are leading to crime. Just to open up with an example, I have a wonderful example to show you. There was a case where an IT expert lost 42 lakh rupees because he saw this video of Priyanka Chopra, and it's a deep fake video. Let's hear this video. I hope the audio is there. I earned 10,000 lakhs. I started the project with my good friend. Her name is Ruchi Pala. You can earn up to 300,000 rupees starting from just 10,000 rupees. We work officially and pay taxes. All you need to do is subscribe to us in the So in this video, you heard that Priyanka Chopra deepfake is saying that you can earn 3 lakh rupees by investing 10,000 rupees. And imagine what happened. IT engineer who is a Gurgaon based IT engineer working in a software company, he lost only 42 lakh rupees. And if you read the news also tells you the same story, that this engineer was an IT company. He had a promise of substantial earnings. He was supposed to join this Telegram channel and he will get money out of it. So now, my dear students, look at the threat angle. We are talking of IT company CEOs, we are talking of doctors, we are talking of professors, and we are talking of engineers. And if the cyber crime is enveloping all of them, whether it is work from home scam, whether it is a loan scam, whether it is a fake trading app scam. Acha, there's another thing which I want to bring in here is something called digital diet. So I'm talking of these 2 points, cyber hygiene and digital diet. So what is a diet? I think all of you students must have heard you're looking beautiful, you're looking elegant, you're looking just like a wow. But I don't think anybody has seen this video on any of the police handles where they are talking about these trading apps and fake trading apps. So there are videos, but नमस्कार डॉक्टर अक्षित टंडन। ये आजकल फेक ट्रेडिंग एप्स बहुत ज्यादा और इट्स अ FedEx scam. दोस्तों 2 अलर्ट्स। आपको कॉल आएगा कि हम FedEx से बोल रहे हैं, आपका courier आया है। And if you look at the insights of this video, students, this video has been watched only by not 94,000 people. That's it, 94,000 people. And if you talk of the video called Moe Moe, I think it has billions and billions of plays and reels and followers. So what my point here is, what kind of content are you consuming? There is so much of awareness. There is a MHA handle called Cyber Dost. I hope you have heard about it. And if you guys are on Instagram, you should know about these handles. This is a regular handle which we are using to promote how to be safe online, what are the latest scams, what are the latest frauds, how these fake police officers are trapping you, how these trading apps are. Well, there is so much of awareness we are doing. Look at this, Farji stock trading app Vigyapan ko pehchane. And what is happening at the end of the day? This is happening. A lady in Mumbai, she only lost 4.56 crore in a trading app. So this Mumbai lady, she lost how much? 4.56 crores. Right? She lost 4.56 crores, and because she called 1930, we could recover 3.6 crores. And why? Because she called us in the golden hours. Now, the first 24 hours are called as golden hours. So, coming to the point that today cyber crime is becoming sophisticated. अगर आप लोगों को कुछ पुरानी कहानियां याद हो, एक सीजन सुना आपने, टीवी सीरीज शायद देखी हो,
इट वॉज कॉल्ड जामताड़ा, सबका नंबर आएगा, एंड दैट इज ट्रू। एंड बट उस वाली सीरीज में अगर आप देखो तो वो आपको ऐसे कॉल आता था, अरे आई एम कॉलिंग फ्रॉम एसबीआई ब्रांच मैनेजर रोहित शर्मा, आपके एसबीआई का कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, कृपया ओटीपी बताएं। एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स आप सोचते थे अरे यार मेरा तो एसबीआई में अकाउंट ही नहीं है। लेकिन साहब आज अपराध बहुत मेच्योर हो गया है। अब कॉल क्या आता है, डॉक्टर रक्षित टंडन, मैंने यस आपने कल रात को 8:32 पे 2,500 रुपए का पेट्रोल इस पेट्रोल पंप से डलवाया था। मैंने जी हाँ डलवाया था। आपका कार्ड नंबर की लास्ट डिजिट्स ये हैं। मैंने कहा हाँ साहब ये हैं। हम बैंक से बोल रहे हैं आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, देखिए ओटीपी आया होगा। नाउ इमेजिन द चेंज इन कॉल। पहले वो फ्लूक था, अब वो स्पीयर है, स्पीयर फिशिंग है। मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल भाला लगा के मारा है छाती पे। उसे पहले से पता है मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गई है जिसको कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। आप लोग अपने फोन की साइबर हाइजीन का ध्यान ही नहीं रखते हो। इतने एडवांस मैलवेयर्स बन गए जो आपके फोन से बैठे बैठे डेटा चुराते हैं। मैं अपने थोड़े दिन पहले 3 तारीख को सूचना आई कि 5,000 फोन हैक हो गए और उनका सारा पैसा गायब हो गया। और मुझे स्पेशली पुलिस ऑफिसर ने यह बताया कि किसी ने भी कोई ओटीपी नहीं दिया था। उसी दिन जैसे ही मैंने इस अपराध को इन्वेस्टिगेट किया, मैंने उसी समय एक छोटी सी रील बना के डाली और मैंने लोगों को आगाह किया कि देखिए इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। मैं डॉक्टर रक्षित टंडन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आजकल एक सीएससी अपडेट करें उस तरीके लोगों के पास ये मैसेज आ रहा था अपना सीएससी अपडेट करें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीएससी। सीएससी इज कॉमन सर्विस सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दीज हैकर्स वर सेंडिंग दीज मैसेजेस विद अ एपीके फाइल एंड द नेम ऑफ द एपीके फाइल वाज csc.apk। 100 में से 90 लोगों ने इस बटन को दबाया और इस एपीके फाइल को अपने फोन में डाउनलोड किया। जरा इस एपीके फाइल की असलियत देखते हैं। तो आई विल जस्ट ओपन अ टूल विच इज कॉल्ड वायरस टोटल, और मैं इस टूल में इस फाइल को लोड करूंगा जस्ट टू चेक कि ये फाइल में डेटा क्या है। तो मैंने ये फाइल जब यहां से स्कैन करी अपने फोल्डर से csc.apk, मैंने जैसे ही इसे स्कैन किया तो देखें इसने क्या जवाब दिया। इसने जवाब दिया कि इसमें 31 मैलवेयर्स पाए गए, और मैलवेयर्स की जो कैटेगरी थी बड़ी खतरनाक थी। उनका नाम था ट्रोजन, और उसके आगे लिखा है एसएमएस स्पाई। फिर एक कैटेगरी थी ट्रोजन एंड्रॉइड बैंकर, फिर एक कैटेगरी थी ट्रोजन आईसीआईसीआई बैंक, फिर एक ट्रोजन एसएमएस स्पाई। अगर आपको बेसिक्स भी पता है कंप्यूटर और वायरस के बारे में तो ये 2 शब्द आपने जरूर सुने होंगे, स्पाईवेयर, ट्रोजन और एसएमएस स्पाई। बेसिकली ये एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मेरे फोन के सारे एसएमएस किसके पास चले गए? हैकर के पास। और ये मुझे आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान का डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑल डिपेंडेंट ऑन समथिंग कॉल्ड ओटीपी, और ओटीपी एसएमएस में आता है। सो नाउ इफ यू आर इन्फेक्टेड विद अ वायरस व्हिच कैन स्टील योर ओटीपीज, योर बैंक, your share trading, your mutual funds, your Aadhaar verification, everything is compromised by a hacker. So one mobile phone can become a weapon if you have no proper cyber hygiene. अगर आप किसी गलत, और ये सुनो, हैकर ऐसे नहीं आता है हेलो आई एम अ हैकर मे आई कम इन। वो देखो कैसे आता है। मेरे पास एक बड़ी धमकी भरी मेल आई। मेरा एक छोटा सा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, काफी सालों से चला रहा हूँ, 47 फॉलोअर भी है मेरे, और इस हैकर ने मुझे मेल भेजी। जरा देखे क्या मेल थी वो। So I'm just opening my mail account to show you what kind of a mail I received. It was from ये रही Instagram। बड़ी डरावनी मेल थी साहब। Hello Rakshit.Tandon, we have received complaint. Your account is infringing copyright. If you do not appeal, your account will be permanently deleted. Kindly press the appeal button. खैर मैंने बटन तो नहीं दबाया, मैं थोड़ा सा समझदार था, लेकिन कोई आम आदमी होता वो डर जाता, वो कहता अरे मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो जाएगा, और वो इस बटन को दबा देता। मैंने जब इस बटन का डाइसेक्शन किया, आई जस्ट कॉपीड द लिंक, और अभी जो मैंने आपको एक टूल दिखाया था वायरस टोटल, मैं वहां पे गया और मैंने इस लिंक को वहां पेस्ट किया, तो मुझे पता चला इसमें 6 खतरे पाए गए। एंड द खतरा वाज कॉल्ड फिशिंग एंड मलेशियस। मलेशियस मतलब मैलवेयर। आई हैव रिसीव 2-3 केसेस रिसेंटली, और आप ही के बराबर का एक बच्चा है 20 साल का, उसकी मेरे पास एमपी से कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट क्या कहती है मैं आपको अखबार में दिखा देता हूं, अखबार में छपा था ये केस। ये बच्चा 20 साल का कहता है कि इनकम टैक्स ने मुझे 46 करोड़ का टैक्स एवेजन नोटिस भेजा है।
जिस बच्चे ने अभी नौकरी शुरू नहीं करी, उसके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है 46 करोड़ रुपए का, और उस पर पता चलता है इन्वेस्टिगेशन पे कि उसके पैन कार्ड की फोटो का मिसयूज हुआ। एक हैकर को उसके पैन कार्ड की फोटो कैसे मिली? क्योंकि उसने किसी उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक किया, लिंक से आया मेलवेयर, और मेलवेयर था डेटा स्टीलिंग मेलवेयर, जो उसकी फोटो गैलरी उठा के ले गया। और हमारी फोटो गैलरी बहुत खूबसूरत है आजकल। हमारी फोटो गैलरी में हमारे आई कार्ड की फोटो होती है, हमारे आधार की फोटो होती है, हमारे पैन कार्ड की फोटो होती है, हमारे सरकारी लेटर्स की फोटो होती है, हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। और ये सारा डेटा हैकर्स को बड़े आसानी से क्लाउड के थ्रू, मेलवेयर के थ्रू मिल जाता है। तो एक बात तो यहां ये समझ में आई कि नेवर कीप योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन फोटो गैलरी, इंस्टेड यू कैन यूज डिजी लॉकर। नंबर 1। और यू कैन कीप योर डेटा इन क्लाउड, जिसे आप लोग कहते हैं ड्राइव या आई क्लाउड, बट डोंट कीप इट इन फोटो गैलरीज। तो एक केस और देखें, ये थोड़ा फनी है लेकिन है। एक मैडम है सनी लियोनी करके, अगर नाम सुनाओ, इनकी एफआईआर आती है, कहती है कि साहब मेरे पैन कार्ड से किसी ने लोन का फ्रॉड किया, और वो लोन का अमाउंट कितना था जरा देखिए, 2000 रुपए। तो एक हैकर यूज्ड हर पैन कार्ड टू टेक अ लोन ऑफ 2000 रुपीज, स्पॉइलिंग हर सिबिल स्कोर। उसका सिबिल स्कोर खराब हो गया और कोई बैंक उसको लोन देने को तैयार नहीं था। माय डियर स्टूडेंट्स, डेटा प्राइवेसी अब मिथ नहीं रहा, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस नाउ, यू आर गॉन। और डेटा आ कहां से रहा है, इसका मैं एक लाइव उदाहरण देता हूं। आई होप आप सब लोगों के पास इंस्टाग्राम होगा। तो मैं इंस्टाग्राम ढूंढता हूं प्ले स्टोर पे, ये रहा इंस्टाग्राम, और फिर इस इंस्टाग्राम में मैं नीचे जाके देखता हूं इन्होंने मेरा क्या क्या डेटा कलेक्ट किया। तो ये जो डेटा की दुकान चल रही है, कहां से चल रही है देखें जरा। First of all, they are collecting my precise location. They know about my files and documents. They know about my web browsing history. मैं कल अपने ब्राउजर पे एक नया टैबलेट ढूंढ रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ टैबलेट्स के ऐड आने लगे, बिकॉज they are catching my browsing history. They are recording my voice, sound and other audio files. They are listening to me. जो मैं बोल रहा हूं मुझे वही ऐड दिखाई दे रहे हैं। They know about my political and religious beliefs. They know about my sexual orientation. They know all my contacts, and they know all my financial details and calendar and messages and photos and videos and health and fitness. अब आप एक ऐप फ्री में डाउनलोड करते हो, फ्री में अपनी तस्वीरें और वीडियोस और रील्स देखते हो, लेकिन इसके बदले आप उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा देते हो। तो अगर आज मैं देखूं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, तो इतनी वैल्यूएशन है आज की तारीख में इस कंपनी की, फॉर एग्जांपल मेटा की $562 बिलियन, और जबकि ये किसी भी यूजर से ₹1 नहीं लेते हैं। जो भी रेवेन्यू आता है वो एड से आता है। सो डेटा इज द न्यू गोल्ड, एंड अगर अभी हम नहीं समझेंगे कि डेटा कैसे सिक्योर करना है, अगर हम अभी नहीं समझेंगे कि हमें अपना डेटा कैसे सिक्योर करना है, तो आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो डेटा इज अ बिग मिस हैपनिंग राइट नाउ। और ये जो डेटा जा रहा है, अभी आप देखो थोड़े दिन पहले ही मैंने एक ये जो न्यूज आई है कि देयर इज अ मेजर पैन कार्ड मिसयूज स्कैम व्हिच इज फोल्डिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड मेनी केसेस आर बीन रिपोर्टेड। सो देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आर हैपनिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, मैं अगर आपको उसके फिगर्स दिखाऊं, तो इसमें जो करोड़ों रुपए का स्कैम हो रहा है, उसमें जो विक्टिम है वही परपिट्रेटर भी है। मतलब दिस इज मोर स्कैरी। तो जो पैसा इन लोगों को फ्रॉड का मिल रहा है वो भी हैकर से मिल रहा है, और जो जिसका पैसा हैक हो रहा है वो किसी दूसरे हैकर को मिल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, दे हैव क्रिएटेड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम। और बच्चों, आप लोग चूंकि अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसको कहते हैं साइबर स्लेवरी। अभी हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे साइबर स्लेवरी हो रही है, और इस पे यूएनओडीसी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी प्रिंट करी है। और अभी सबसे पहला हमारे को अभी हमने लेटेस्ट एक केस खोला है जिसके अंदर एक जॉब एस्पायरेंट को विदेश ले जाया गया हांगकांग के बहाने, और हांगकांग की जगह उनको कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ले गए। मैं कॉल सेंटर में बंद कर दिया और उनका सारा पासपोर्ट छीन लिया, और उन बच्चों को टॉर्चर किया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, और उनसे कहा आप साइबर क्राइम करिए। तो ये जो आजकल स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, ये वही उस कॉल सेंटर से आ रहे हैं। मतलब अभी 5000, ये देखिए कंबोडिया कंबोडिया
और ये लिखिए। तो अभी दिस वाज द लेटेस्ट न्यूज, 5000 इंडियन फोर्स्ड इनटू साइबर स्लेवरी इन कंबोडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज डिस्कसिंग अ रेस्क्यू स्ट्रैटेजी। करीब 5000 हमारे बच्चे जो हैं वहां ट्रैप हो गए हैं और ये लोगों को अब तक 500 करोड़ रुपए से हैक कर चुके हैं। तो मतलब हमारे जो आईटी ग्रेजुएट्स या जो भी ग्रेजुएट्स हैं ये उनको उठा के वहां ले जाते हैं और इनसे क्राइम कराते हैं। तो मतलब अब आपको ना जॉब स्कैम में भी बहुत केयरफुल रहना है। ये एक नया हमें थ्रेट दिखाई दे रहा है, साइबर स्लेवरी, और इन सब के 99% पीछे जो है वो चाइना है। तो बी वेरी केयरफुल। ये हम लोगों ने अभी कई केसेस में देखा कि जितने भी ये वाले स्कैम्स हो रहे हैं, ट्रेडिंग ऐप, लोन स्कैम, वर्क फ्रॉम होम स्कैम, इन सब स्कैम्स के अंदर व्हाट वी आर सीइंग दैट द हैकर्स आर यूजिंग कंबोडिया के आईपीज और हांगकांग के आईपीज। तो ये बड़ा स्कैरी है। तो और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, अभी हरियाणा में हमने एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, तब हमें पता चला कि कई बच्चों को उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए बाहर भेजा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अब दो एस्पेक्ट आ गए। एक, आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि आप लोग चूंकि जॉब सीकर्स हो तो आप इधर उधर ऑनलाइन जाते हो, एड्स देखते हो, अप्लाई करते हो, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड केयरफुल। जस्ट बिकॉज कि वो आपको फॉरेन कंट्री का लालच दे रहे हैं, सो यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड, नंबर वन। नंबर टू, ये जो 3 मैंने हाईलाइट किए स्कैम्स, इनसे बचिए। तो मैं ना आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। ये देखिए वो आंकड़े, आई शो सम स्टैटिस्टिक्स, आई होप माय स्क्रीन इज शेयर्ड विद यू। यस, ओके, हियर यू गो। ये देखिए साहब, वो आंकड़े ये रहे। 4 महीने में वी हैव रजिस्टर्ड 85,000 स्कैम्स फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, जिसमें 1420 करोड़ वाज लॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, 222 करोड़ इन ट्रेडिंग स्कैम्स, 120 करोड़ इन डिजिटल अरेस्ट। ये बहुत स्कैरी है। मेरे पास कल ही एक ओल्ड कपल का केस आया है, दोनों सीनियर सिटीजन हैं और बेचारों को इतना डरा दिया, उनसे 1.5 करोड़ लूट लिए। अच्छा, वो पैसे नहीं मांगते, वो क्या कहते हैं, हम आपके खाते चेक करेंगे, वी वांट टू सी कि आप किसी, और नाम कैसे लेते हैं, दाऊद अब्राम, लल्लन शेख, बड़े बड़े गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स का नाम लेते हैं कि इनके पास आपका आधार कार्ड पाया गया है, इसलिए हम आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो बस सिर्फ आपको एक फेक आईडी कार्ड दिखा देते हैं पुलिस का, आजकल फोटोशॉप से बन जाता है। यहाँ तो प्रियंका चोपड़ा का वीडियो बन गया, मुकेश अंबानी का बन गया, नारायण मूर्ति का बन गया, और सोशल मीडिया से दे आर डिसमिनेटिंग इट। 13 करोड़ डेटिंग स्कैम में गए। बच्चों आप लोग बहुत ध्यान रखना, आप लोगों की ये जो आज हमारी जो सोशल मीडिया डिजिटल जनरेशन है, वो डेटिंग भी ऑनलाइन करती है। वो क्या कहते हो, टिंडर, और वो राइट और लेफ्ट और पता नहीं क्या क्या स्वाइप करते रहते हो। कम से कम 13-14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सो वी हैव रिसेंटली बस्टेड सम गैंग्स जो इनोसेंट लड़कों को डेटिंग के नाम पे ले जाते हैं एंड देन दे उनको लूट लेते हैं। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस ऑल्सो। तो आप देखिए कितना, एक सिर्फ 3 महीने का डेटा दिखा रहा हूं आपको, और ये हमारे एमएचए ने बताया कि ये सारे ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स इन 3 कंट्रीज से ऑपरेट हो रहे हैं, लाओ, म्यांमार और कंबोडिया। और ये लोग हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं थ्रू इलीगल रिक्रूटमेंट एजेंट्स। सो प्लीज 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 बी वेरी 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 केयरफुल ऑफ दी स्कैम्स। अपने फोन में आप कोई लिंक पे क्लिक मत करो फालतू। यू शुड हैव अ अप्रोच ऑफ जीरो ट्रस्ट। आप कोई फालतू एपी के फाइल इंस्टॉल मत करो। कोई भी ऐप इंस्टॉल करो तो उसकी परमिशंस चेक करो, उसकी लोकेशन चेक करो। हांगकांग चाइना के ऐप बिल्कुल मत डाउनलोड करो। और ये इतने बदमाश हैं कि इन्होंने ना गूगल में भी जहर घोल दिया है। सो व्हाट दे डू, जैसे मैं गूगल पे गया और मैंने ढूंढा अर्न जॉब करके, अर्न जॉब ऑनलाइन, तो जितने एड्स आएंगे पहले हम प्ले स्टोर पे करके देखते हैं। लेट्स गो टू प्ले स्टोर, और मैंने यहाँ सर्च किया अर्न जॉब। अब ये जितने एड्स आ रहे हैं ऊपर एप्स के, अगर आप इन एप्स को देखोगे तो इनकी अगर आप डिटेल देखोगे ये कहां से बने हुए हैं, तो पता चलेगा ये हांगकांग या चाइना से बने होंगे। सो दैट इज द कैच, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप क्या अपने फोन पे डाउनलोड। गाना कहां से बज रहा है भाई, अरे भाई, हाँ सॉरी। तो भाई ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो, क्या परमिशंस दे रहे हो,
और ये किस तरह से आपके फोन्स में घुस रहे हैं। और ये बात तय हो गई कि वी आर नॉट कीपिंग एनी ऑफ आवर प्राइवेट आईडीज इन आवर फोटो गैलरी। हम ये मैलवेयर और स्पाईवेयर से बच के रहें। और डेटा की तो हालत इतनी खराब है कि कोई नहीं बचा, मतलब रोज हो रहा है। अभी आप में से कितने बच्चों के पास बोट का कोई वो पड़ा हुआ है, हेडफोन या कुछ खरीदा हो? अभी अप्रैल के अंदर ये सूचना आई कि बोट की कंपनी में डेटा ब्रीच हो गया। 7.5 मिलियन यूजर्स का डेटा वाज लीक्ड ऑन डार्क वेब, और ये डेटा आपका पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन था, पीआईआई था। जबकि हमारे यहाँ अब भारत सरकार ने डेटा लॉ बना दिया है। निशित भाई बैठे हैं, ही इज अ लॉ एक्सपर्ट, ही विल टॉक टू यू अबाउट द लॉज और किस तरह से लॉज इसको कवर करते हैं। लेकिन बॉस स्थिति ये है कि जोमेटो का डेटा चोरी हो गया, 17 मिलियन लोगों का। अब आप भी तो, कई बच्चे जोमेटो चलाते हैं। आधार का डेटा ब्रीच हो गया, 81.5 करोड़ लोगों का आधार डेटा वाज फाउंड ऑन डार्क वेब। अब आप सोच रहे हो कि ये फेडेक्स कॉल वाले को मेरा आधार नंबर कैसे पता? ऐसे पता है। उसे मेरे बारे में कैसे पता? क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है। बिग बास्केट तक पे अटैक हो गया, 20 मिलियन डेटा चोरी हो गया। और अब इसी के आगे एक नई थ्रेट जो उस समय पूरे वर्ल्ड को उड़ा दिया है, उसको कहते हैं रैंसमवेयर। और सुनो, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपके मोबाइल तक सीमित नहीं है। पावर, एनर्जी, डिफेंस, healthcare, everything is digital now. These are called critical infrastructures. So we need more and more cyber security professionals to guard our critical infrastructure. तुम्हारा फोन हैक होता है तो तुम्हारे सिर्फ गूगल पे से पैसे गायब होते हैं, या तुम्हारी कोई पर्सनल फोटो चली जाती है, जो आजकल बहुत बड़ी मुसीबत है। यंग बच्चे जो हैं वो डिजिटल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। रोज मेरे पास केस आते हैं। I have been to more than how many? 70,000 schools and colleges in the country. So a lot of young people know me. और उनकी complaints क्या होती हैं? Sir, I was in a relationship and my hacker, the ex-boyfriend is blackmailing me with my personal photos and he is posting those pictures on blah, 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 blah. I can't tell it to my family. They will kill me. Sir, you please help me. बच्चों, ये मैंने सीख लिया एक्सपीरियंस से। रिलेशनशिप शुड नॉट बी डिजिटल। क्यों? क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है। चैटिंग, आपकी वो प्यारे प्यारे एमोजीज, लाल लाल पान के पत्ते, मुआ मुआ, सोना बेबी, ये सब कभी डिलीट नहीं होते हैं। और 90% केसेस इसी तरह के आ रहे हैं। रिवेंज कहते हैं इसको, प्राइवेट फोटोज। तो बॉस, इट इज नॉट अबाउट योर पर्सनल फोन, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखो, अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में क्या घटना घटी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सारे सर्वर हैक हो गए और डेटा चुरा लिया 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का, और हैकर ने सिर्फ 200 करोड़ रुपए मांगे। इट वॉज अ रैंसमवेयर वायरस। इतना खतरनाक वायरस है कि सारा डेटा इनक्रिप्ट कर देता है, किसी को नहीं पता कि ये खुलेगा कैसे, और फिर वो मांगते हैं फिरौती। वी कॉल इट रैंसम, वी कॉल इट डिजिटल किडनैपिंग। सो दैट मीन्स व्हाट? Cyber hygiene and security is also required for digital, for all your digital infrastructure. मेरे पास अभी एक गाजियाबाद का केस आया था। कॉलेज है, उनके 8 कॉलेजेस है बेचारों के, उनके 8 कॉलेज हैक हो गए। सारा डेटा हैकर ने चुरा लिया, 12,000 बच्चों का। और वो बेचारा कॉलेज का मालिक कह रहा है, मेरे को तो ये भी नहीं पता कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनों की फीस आ गई, कितने स्टाफ को सैलरी दे दी। एंड यू नो हाउ मच द हैकर वाज आस्किंग? $1 मिलियन। $1 मिलियन। 8 कॉलेज का डेटा हैक हो गया था। So today ransomware is also a very big threat. And my dear students, to protect, cyber security is compulsory. Digital cyber hygiene, आपके डिवाइसेस अपडेटेड रहने चाहिए, आपके सारे ब्राउजर्स अपडेटेड रहने चाहिए। आप कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। पायरेसी को बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करो। बहुत सारी चीजें हैं। और वीपीएन्स यूज करो, और इनकॉग्निटो ब्राउजिंग पे ज्यादा फोकस करो, जिससे कोई आपकी कुकी चोरी ना हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स एज प्राइवेसी। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग। डोंट कीप एनी पर्सनल डेटा ऑन योर डिवाइसेस। और अगर कभी कोई घटना हो जाए तो सीधे 1930 को कॉल करें और cybercrime.gov.in पे जाएं। अगर किसी का फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो इमीडिएटली सिम ब्लॉक करें,
पुलिस कंप्लेंट करें, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपनी सिम को री इशू करा लें अपने क्लाउड से, जिसे कहते हैं फाइंड माय डिवाइस या फाइंड माय आईफोन से, अपने फोन को रीसेट कर दें और संचार साथी .gov.in पे अपने फोन को ब्लॉक करा दें। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि कभी भगवान ना करे फोन वोन गिर जाए। आप लोग बहुत कई बार इतने मल्टी यूजर हो, आप लोग कभी फोन कॉलेज में छोड़ देते हो, कभी कैब में बैठे उबर में वहां छोड़ आए, कभी कोई छीन के ले गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डिजिटल डिवाइसेस। तो भारत सरकार ने क्या करा, एक संचार साथी करके एक पोर्टल बना दिया। इस पोर्टल पे यू कैन ब्लॉक एंड लॉक योर स्टोलन फोन। और आप आंकड़े देखिए कितने प्रॉमिसिंग है। द फिगर सेज दैट वी हैव ब्लॉक्ड 17.61 लाख फोन्स एंड 10.11 हैव बीन ट्रेस्ड। ये वो बटन है ब्लॉक करने का, ये वो बटन है रिपोर्ट करने का, सस्पेक्टेड फ्रॉड। अब आज आपने मुझसे 3 चीजें सुन ली। एक, फेक ट्रेडिंग एप्स बहुत चल रहे हैं शेयर वाले। एक, पुलिस वाले कॉल्स बहुत आ रहे हैं, आपके बॉम्ब निकला है, आपके में ड्रग्स निकली है, आपके नंबर अपराध में पाए गए, हम ट्राई से बोल रहे हैं। दीज आर ऑल स्कैमर्स। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्कैम आपको दिखाई दे तो चुप मत रहो, हमारी आंख और कान बनो। तो ये चक्षु हमने एक ऐप बनाया है, आप फौरन यहां रिपोर्ट कर दीजिए हमें। तो संचार साथी इज वन इनिशिएटिव टू कीप इंडिया साइबर सेफ. cybercrime.gov.in is another portal which we say 1930. जितनी जल्दी इस नंबर पे कॉल करोगे आपका चोरी किया हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद है। तो with this I'll try to rest my presentation. I have to rush, but as I committed that I will definitely be there. I'm leaving you with my contact details, dear students. In future, if you are looking for any internships or any guidance or mentorship, you're most welcome to look up to me. I'll share my contact details. That's all, and you can Google me. Everything about me is on Google. This is my contact details. So this is my contact screen. You can follow me on Instagram, LinkedIn, Facebook, or Twitter. You can write an email to me on info@rakshitandon.com. And my dear students, my message, very important message, is spread the awareness. छोटे बच्चे और बड़े लोग, children and senior citizens, these are the most vulnerable lot. तो आज की तारीख में छोटे बच्चे, 14 साल के बच्चे, 13 साल का बच्चा ने अभी बॉम्ब वाली मेल भेज दी। बताओ अब मैं क्या करूं, 13 साल के बच्चे को कहां जेल में डाल दूं, क्या करूं। छोटे छोटे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि इनको कोई साइबर हाइजीन नहीं सिखा रहा है। 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड मजाक मजाक में दिल्ली एयरपोर्ट को मेल भेजता है कि आपकी फ्लाइट में बॉम्ब है। ठीक है, मेरे दिल्ली के अंदर 22 बच्चे गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना के लड़कियों की गलत गलत फोटोज भेजी और गंदी गंदी बातें करी। एंड दे वर द यंगेस्ट वाज 15 ईयर ओल्ड। और अभी मेरे यहाँ एक 65 साल की महिला के सिर्फ 77,000 रुपए चले गए बेचारी के, जब वो ऑनलाइन दूध खरीद रही थी। शी वॉज अ 65 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन एंड शी हैज परचेज्ड मिल्क, और वो वापस करना चाह रही थी तो उसने गूगल से नंबर ढूंढा और बस उसका यूपीआई पिन हैक करके बेचारे के 77,000 रुपीज चोरी हो गए। तो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. साइबर अवेयरनेस इज मस्ट. We should talk about this subject very healthily, and we should children, you take care of children specially. And आपने ये भी देख लिया कि ना आईटी इंजीनियर बच रहा है। अब आप बताओ, विराट कोहली का वीडियो बना दिया बदमाशों ने, और वो भी डीप फेक एआई से। अब विराट कोहली उस वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप कहाँ गया वो वीडियो, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास होना चाहिए, 1 सेकंड लूंगा बस, उसके बाद आई विल एंड माय सेशन. I know I'm taking a lot of your time. Cases ये रहा, देखना विराट कोहली क्या कह रहे हैं. विराट कोहली कह रहे हैं 5,000 रुपए लगाओ, 8,000 रुपए कमाओ. मैं विराट कोहली आपको व्यक्तिगत रूप से मदद के लिए एक नया एप्लीकेशन सिफारिश करता हूं. मैंने इसे खेलना शुरू किया है और सिर्फ 500 भारतीय रुपए लगाकर पहले दिन 8,000 भारतीय रुपए कमाए. मेरा एक बीटेक स्टूडेंट इस ऐप से और इस एड से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दुनिया भर के लोन लेके इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप पे पैसा लगा दिया. एंड फाइनली आई एम सॉरी टू टेल यू दैट दिस बॉय इज नो मोर.
So my dear students, don't let the social media poison your mind. अपनी इंटेलिजेंस को खत्म मत होने दो. रियल इंटेलिजेंस एंड रियल फ्रेंड्स आर बेटर देन रियल फ्रेंड्स. नंबर 1. एंड अपने माइंड की, अपनी इंटेलिजेंस को खत्म मत होने दो. और अब जरूरत है हिंदुस्तान में आप जैसे यंग लोगों को अपना DQ बढ़ाने के लिए. IQ नहीं, DQ, that is digital quotient. So please start focusing on this. Rest, God bless you all. Again, thank you so much for having me, and I'm sorry for rushing it out. I have to leave. That's my handle. You're most welcome to follow and learn from me. God bless you all, and thank you so much. So